Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to present our next topic, which is selfing and crossing techniques in tomato. And tomato is highly self-pollinated crop, and its pollination through selfing is about 94 to 99%, which is show that it is highly self-pollinated crop. And we will also study its floral biology. What is the floral biology of tomato, and what are the mode of pollinations in tomato, and how we do the emasculation, and what are the different methods for the crossing in tomato. Now, what is the aims and objectives of this method? Why we do the study? Why we study the selfing and crossing techniques in tomato, and why we do the selfing or crossing or hybrid seed production? Why we are going toward the hybrid seed production in the tomato? And the number one aim and objectives are to understand the inflorescence features and arrangement of floral parts of tomato. First of all, we will study that what are the different floral parts, what is the floral biology, and what is the inflorescence, and what contain its inflorescence in the tomato. The and then we will also identify the male sterility in tomato. Now, question here is the what is male sterility? In which normal male is present and that is unable to function properly, and that produces sperm cells or anthers which are not functioning properly. This is known as the male sterility, as the male is present that give not birth to the normal pollens or sperms. And the third one is to know the best time of emasculation. What is the best time of emasculation? In this video we will also see that what is the best time for the emasculation and what is the best time for the pollination of tomato. Now, what is the material required in any before going toward the any selfing and crossing technique? We need some protocols, we need some instruments. What they are? First of all, we need the forceps, scissors, pointed needles, magnifying lens, pair of scissors which have very good quality, 95% ethanol bottle which contains, and also have the shower before we are going to move toward the another emasculation or any other pollination. We will have to sterilize our hands instruments before going toward the any next emasculation, before going toward the next any pollination, and thread of different colors to mark the pollination of flowers. That what we have do the pollination and the cotton. Now, our first objective is to study the inflorescence of tomato. For this, we will study the reproductive behavior of tomato. What is the reproductive behavior, or you can say the general methodology? Tomato is the highly self-pollinated crop, as we have discussed earlier. It can have the 94 to 99% self-pollination with 24 chromosomes, which are 2N. Flower are easy to emasculate and pollinate. This have the easy emasculation. Individual or crosses may yield as many several hundred seeds. Even a single cross gives the many seeds contain several hundred seeds. All these factors are helpful in genetic studies. Rate of natural cross pollination is only 0 to 4%. This is natural cross pollination. So that we can also said that tomato is highly self pollinated crop, and this cross pollination is suitable in temperate region, and in case of Peru and other areas have which the insect visited most commonly, because this 4% cross pollination, 0 to 4% cross pollination occur due to the mostly due to the insects. And tomatoes complete its reproductive cycle in 94 to 115, इनके 95 से 115 दिन जो है डिपेंडिंग अपॉन कल्टीवार, कि जो टोमेटो है वो अपना जो टमाटर हैं जिनको हम टोमेटो कहते हैं, टोमेटो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, कि वो अपना पूरा लाइफ साइकिल फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग complete its life cycle in 95 to 115 days 115 days, जो कि कल्टीवार किसी कल्टीवार के अंदर 95 है, किसी कल्टीवार के अंदर
115 है, 110 है, 110 है, 115 डिफरेंट डेज हैं जो कि कल्टीवार पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट फ्लावर ओपन इन 7 to 8 वीक्स, जो 7 से 8 वीक के अंदर पहला फ्लावर ओपन हो जाता है। आफ्टर सीडलिंग के जब हम सीडलिंग को ग्रो करते हैं, एंड एडिशनल 6 to 8 वीक लगते हैं उसको ओपनिंग फ्लावर कंप्लीट करने के अंदर। एंड फर्स्ट फ्लावर टू राइप इन 1 मंथ के 1 मंथ के अंदर वो, यानी कि 30 डेज के अंदर, हमने पहले बात की है कि 95 to 115 डेज के अंदर वो एक अपनी कंप्लीट कर देता है लाइफ साइकिल के अंदर। लेकिन वो जो पहला फ्रूट है वो अबाउट 130 डेज के अंदर वो मेच्योर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, या हम इसको फ्लोरल बायोलॉजी भी देखने लगे हैं, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी भी हमने देखी। अब फ्लोरल बायोलॉजी क्या है इसके अंदर, वो भी आप लोगों को मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ कि इसका फ्लावर जो है एनसी स्टेज पे येलो कलर का, और उसके ऊपर एक कौन सी आपको नज़र आ रही है। देन ट्राइंग टू फ्लोरल बर्ड फॉर सेल्फिंग, जब आपने इसकी सेल्फिंग करनी है आप उसको क्या करते हैं, वो फ्लोरल बर्ड को नीडल के साथ आप रैप कर देते हैं। तो वो फ्लोरल पार्ट्स आपको लास्ट पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स हैं। फ्लावर्स आर परफेक्ट having both male and female parts functional. Several flowers are born on the each compound inflorescence, क्योंकि इसकी inflorescence जो है वो compound टाइप की होती है, and termed as trichus, TRUSS, which the cyme with dichotous branches, उसके अंदर डाइकोमस ब्रांचेज होती हैं। एंड द प्लांट कैन प्रोड्यूस 20 और मोर इन्फ्लोरेसेंस के, एक जो पौधा या एक प्लांट जो है इसके ऊपर 20 या 20 से ज़्यादा इन्फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती हैं। कैलक्स कंटेन 5 to 7 सेपल्स, ग्रे कलर की होती हैं, एंड अल्टरनेट विद पेटल्स। क्रोला आर ब्राइट येलो इन कलर, आपको पिक्चर्स के अंदर भी नजर आएगा, दैट इज येलो कलर, ब्राइट येलो कलर का होगा। एंड कंटेन 5 to 7 पेटल्स। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमन विच आर ग्रेनिश येलो, बिल्कुल ग्रेनिश से येलो के होंगे आपको। फ्री एट बेस एंड यूनाइट एट टॉप, जो बेस है उससे थोड़ा सा फ्री होंगे, लेकिन आपको टॉप पे वो क्लियर नज़र आ रहे होंगे कि वो यूनाइट हो गए, वो इकट्ठे हो गए। द एंथस dehiscence longitudinally, carpels are greenish and vary in numbers corresponding to number from लोक्यूल्स फाउंड इन फ्रूट, कि वो फ्रूट के अंदर कितने लोक्यूल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ओवरीज हैं, दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ लोक्यूल्स। ओवरी इज हाइपोकाइनस, इंफीरियर फ्रूट इज बेरी एंड वेरी शेप एंड डिफरेंट कलर्स, ये और ये जो टोमेटो का फ्रूट है डिफरेंट कलर के अंदर बिलोंग वेरी करता है। अब हम बात करते हैं कि सेल्फिंग या क्रॉसिंग टेक्निक्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फिंग, एज वी हैव डिस्कस, द टोमेटो इज द self-pollinated crop, or you can say highly self-pollinated crop. So present cultivar have tried reproductive another cone surrounding the stigma which is greatly reproduce the possibility of natural cross fertilization, जिसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन जो वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है कोन टाइप वो इसकी सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करता है। फ्लावर मूवमेंट बाय विंड इज सफिशिएंट टू रिलीज पोलन इन फील्ड कंडीशन बट नीड वाइब्रेशन टू ओपन द फ्लावर इन ग्रीन हाउस, कि अगर आप टोमेटो को ग्रीन हाउस के अंदर लगाते हैं तो दैट नीड वाइब्रेशन, वो विंड के थ्रू भी हो सकती है, वो किसी और तरह भी वाइब्रेशन हो सकती है ग्रीन हाउस के अंदर। सो देयर इज नो नीड टू बैगिंग इन ओपन फ्लावर, कि आपने उस फ्लावर को बैग नहीं करना होता कि जब आपने इसकी सेल्फिंग करवानी है। स्टिग्मा कम आउट एंथर कोन एट हाई टेम्परेचर एंड दस नीड केयर, आपने सिर्फ उसकी केयर करनी होती है। सम रिसर्चर टाइज अन ओपन फ्लोरल बर्ड विद सम, जो उसकी रैपिंग कर देते हैं, रैपिंग इसलिए करते हैं जो हमने ऊपर बात की थी थ्रेड के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ आपने इसको करना है। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का अगर आपने करवानी है, इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स के अंदर आपको पता है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मोस्टली प्रेफर की जाती है। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं, फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल प्लांट्स इज यूजुअली 4 to 6 फीमेल्स फॉर 1 मेल, कि अगर आपके पास एक मेल ग्रो किया आपने तो 4 से 6 मेल फीमेल आपके पास होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लावरिंग एबिलिटी, कि उसके अंदर फ्लावर कितने हैं, पोलन प्रोड्यूसिबिलिटी के उसके अंदर पोलन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड फर्टिलिटी ऑफ मेल,
कि उसका वो मेल फर्टाइल है, स्टेराइल तो नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ फ्लावरिंग टू ईच लाइन द प्लांटिंग डेट में बी एडजस्टेड, कि आपने उसकी जो फीमेल है, ये नहीं है कि आप उस फीमेल को तो मेस्कुलेट कर देते हैं, लेकिन आपके पास जो एंथर है दैट वाज नॉट अवेलेबल व्हेन यू हैव डन द मेस्कुलेशन, तो आपने इस तरह से उसकी प्लांटेशन डेट की उसको सोइंग को इस तरह से मैनेज करना है कि आपके पास दोनों चीज़ें पैरेलल आ रही हों। व्हेन द फीमेल प्लांट्स ऑलरेडी, अच्छा उसके बाद है यूजली द मेल लाइन्स इज प्लांटेड 1 to 3 weeks अर्लियर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अनफ पोलन, कि आप जो मेल प्लांट है उसको 1 से 3 वीक या 1 वीक 2 वीक या 3 वीक पहले लगाते हैं ताकि आपके पास अनफ पोलन आ जाए जब आपके पास पोलिनेशन करवानी है, जब आप उसकी फीमेल की मेस्कुलेशन करवा रहे हैं। इन एडिशनल एडवांटेज इसका क्या आता है, अर्ली मेल प्लांटिंग का क्या एडिशनल एडवांटेज है, ये आपको एक्सप्रेशन ऑफ टाइप प्लांट्स का बता देती है कि आपने इन प्लांट्स को रखना है या आपने इनको रिमूव कर देना है, कि आपका ये प्लांट जो आप ग्रो कर रहे हैं मेल प्लांट जिसको आपने पोलन लेने हैं, तो ये प्लांट आपके डिज़ायर्ड ट्रेड शो भी कर रहा है कि नहीं, इस वजह से आप उसकी अर्ली प्लांटिंग में करते हैं। आप उसको अल्टरनेट रोकिंग भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं जो ऑफ टाइप प्लांट्स है। देन इसके अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए आपके पास आपने मेस्कुलेशन करवानी है, हैंड पोलिनेशन करवानी है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मेल स्टेराइल जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं, उनकी पोलिनेशन करवा देते हैं, उनकी आपको मेस्कुलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड मेस्कुलेशन एंड हैंड पोलिनेशन इन द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड फॉरवर्ड ड्यू टू द हाई प्राइस ऑफ हाइब्रिड सीड। जब हाइब्रिड सीड की प्राइस हाई होती है, आपको पता है कि जो वेजिटेबल्स हैं दे हैव वेरी हाई प्राइस ऑफ हाइब्रिड सीड, तो इस वजह से वो इसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको मैनुअल सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने ये जो काम किया है या आपने ये जो काम करवाया, दैट वुड बी द ग्रेट presence of several inflorescences on plants facilitate the crossing between the cultivar and present extreme in variation of maturity since flowering occur in the long period for time, especially in case of intermediate varieties. अब मेस्कुलेशन इसके अंदर किस तरह करवाते हैं, मेस्कुलेशन शुड बी डन अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 days प्रायर द एंसिस। जब आपके पास एंसिस स्टार्ट होती है उससे 1-2 दिन पहले ही आप फ्लावर ओपन होने से पहले ही आप मेस्कुलेशन करवाते हैं। व्हेन सेपल्स हैव बिगन टू सेपरेट, जब उसकी सेपल्स सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, आपको पिक्चर के अंदर नजर आएगा कि वो अलग-अलग हो रही हैं। एंड पेटल्स हैव नॉट रीच्ड देयर फाइनल डार्क येलो कलर, कि उनकी जो पेटल्स हैं आपको पता चला कि वो डार्क येलो की तरफ अभी नहीं गई, उससे इनिशियल स्टेज के ऊपर ही है। Otherwise, when petals have just opened from 45 angle and the axis of the flower, the whole anther cone can be removed। अगर उससे पहले आप बाद में आप करते हैं तो आप पूरी एंथर कोन जो है उसको रिमूव करते हैं विद फोर्सेप एंड डायरेक्टली बाय द हैंड। आप या उसको फोर्सेप से पकड़ लेते हैं या आप उसको बाय हैंड पकड़ लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है थर्ड पिक्चर के अंदर आपने वो कोन को किस तरह रिमूव किया है। यूजली द मेस्कुलेशन इज डन एट आफ्टरनून, आप दोपहर के अंदर इसको करते हैं। एंड मेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर पोलिनेटेड द फॉलोइंग सेम डे, उसी दिन के अंदर आप उसको पोलिनेट करवा सकते हैं। पोलिनेशन के अंदर क्या करते हैं कि पोलन आर कलेक्टेड फ्रॉम फुली मैच्योर्ड फ्लावर बाय यूजिंग द डाइसेक्टिंग नीडल। आप जो डाइसेक्टिंग नीडल आपके पास होती है उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसको जेंटली शेक करके पोलन को कलेक्ट करते हैं। मार्क अ स्लिट इन द अनदर कोन, उसके अंदर अनदर कोन के अंदर आप ले जाते हैं। प्लेस द पोलन ऑन स्टिग्मा फॉर एमेस्कुलेटेड फ्लावर्स यूजिंग द कैमल हेयर ब्रश, आप उसको कैमल हेयर ब्रश के साथ करवाते हैं। एंड अदर डायरेक्टली टच द टिप ऑफ फुली रिप्रोडक्टिव स्टिग्मा, या आप उसका जो फ्लावर है उसको तोड़ के दूसरी जो फीमेल है उसके ऊपर डस्टिंग करवा देते हैं। रिपीटेड पोलन हैव बीन रिपोर्टेड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रिजल्ट, जितनी ज़्यादा आप उसको पोलिनेशन करवाते हैं उतने आपके पास अच्छे रिजल्ट आते हैं। आफ्टर पोलिनेशन पोलिनेटेड फ्लावर्स इज रिकमेंडेड if the process is done, if the air is in order to protect, आपने उसको कवर कर देना है फॉरन, ताकि उसको कोई फॉरन जो पोलन है उसको पोलिनेट ना कर सके या उसको कंटेमिनेट ना कर सके। ए पेपर बैग इज मोस्ट सूटेबल मटेरियल। तो देन आपने उस फ्लावर को अब किसी आपने लिख देना, लेबल लगा देना। लेबल आपने क्या लगाना है कि आपने नेम ऑफ क्रॉस लिखना है, उसके अंदर फीमेल का नाम पहले आएगा, देन मेल का नेम, देन आपकी डेट ऑफ मेस्कुलेशन, डेट ऑफ पोलिनेशन एंड योर सिग्नेचर। देन पोलन स्टोरेज, अगर आपने पोलन को स्टोर करना है इन केस ऑफ टोमेटो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर वर्किंग विद द टोमेटो, you have sometime you don't have enough availability of pollen, then
that's also create a problem. Then what to do? You have to store the pollen. The storage of pollen for 5 days at room temperature does not affect the viability. आप उस पोलन को आपने कलेक्ट किया, आप उसको एक रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रख दें तो उसको 5 दिन के लिए कोई इफेक्ट नहीं होता, वो वायबल ही रहता है. पोलन स्टोर्ड अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशन 9 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर और डज नॉट शो अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वायबिलिटी, वो भी वाइबल रहता है. इवन 7 days ऑफ स्टोरेज के आप उसको 7 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं. क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, अप्लाइड टू द पोलन. फ्लावर्स पोलिनेटेड विद पोलन सैंपल स्टोर्ड फॉर 5 वीक एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर. हैड सिमिलर फ्रूट सेट एंड नंबर ऑफ वाइबल सीड टू दोज पोलिनेटेड एज फ्रेश. कि अगर आप फ्रेश पोलन लेके उसको पोलिनेट करवा रहे हैं उसका रिजल्ट भी सेम होता है. अगर आप उसको -80 पे रख के बेशक आप 5 वीक्स यानी 1 माह से बाद 1 माह से ज़्यादा भी इसको स्टोर करें तो दोनों का इफेक्ट जो दोनों का रिजल्ट जो है दोनों जो है गिव सिमिलर रिजल्ट फॉर फ्रूट सेट. द सेम रिजल्ट फॉर ऑब्टेन. उनके अंदर आप रिपीटेडली कॉल भी कर सकते हैं ऑफ 6 साइकिल्स के लिए. अब प्रिकॉशन क्या है? ऑलवेज यूज़ क्लीन पोलिनेशन टूल. आप उसको जब भी आपने सेल्फिंग या क्रॉसिंग या उसको टूल्स को अपने हैंड्स पे यूज़ करना है तो आफ्टर एवरी प्रोसेस यू हैव टू स्टरलाइज योर हैंड्स एंड योर इंस्ट्रूमेंट्स. तो फील्ड कंडीशन के अंदर हॉट विंड्स के अंदर आपने ये काम जो है वो पिस्टल बिफोर करना है सारा, जो उनको स्टरलाइज करना है. सीड कलेक्शन जो है 200 और मोर सीड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल क्रॉस. तो एक्टिविटीज़ क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए? आपने एक चार्ट सा बनाना होता है, उसके अंदर आपने लिख रहा है सेल्फी कितनों की करवाई, कितने सक्सेसफुल हुए, कितने आपके पास ड्रॉपेज हैं. तो ये काम स्टूडेंट्स ने करना होता है. तो आपने उनका ये निकालना है कितनी आपके पास सक्सेसफुल है सेल्फी की, कितनी आपके पास सक्सेसफुल है क्रॉसिंग के लिए. तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट टू वर्ड द सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन टोमेटो. तो आप लोगों को होप्स हो ये लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं. मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333820249 820 2149 के ऊपर, या आप लोग इस यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.